গ্রাহকের বাড়িতে রোজ দুধ দিয়ে যেতেন এক দুধ বিক্রেতা। ভালো মনে সেই দুধ নিয়েও নিতেন বাড়ির কর্তা। কিন্তু একদিন বাড়ির বাইরে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কার্যত চোখ কপালে উঠে পড়ার জোগাড়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় দুধ দেওয়ার আগে দুধের পাত্রে থুতু দিচ্ছে ওই দুধওয়ালা। এরপরই থানায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়ে ওই দুধওয়ালার নামে অভিযোগ দায়ের করেন গৃহকর্তা। এই ভিডিওটি ভাইরাল হতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে। জানা গেছে ওই দুধ বিক্রেতা পাপ্পু নামেই পরিচিত, কিন্তু পরে জানা যায় ওই দুধ বিক্রেতার নাম মোহাম্মদ শরীফ। ওই গৃহকর্তার দাবি ওই দুধ তিনি শিবের পুজোতেও ব্যবহার করতেন। এই কাজের জেরে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে লখনৌয়ের গোমতীনগর থানা এলাকায়। আপনাদের সেই ভিডিওটা আগে দেখাই, দেখুন। ভিডিওটি দেখলেন, সিসিটিভিতে সবকিছু পরিষ্কার ধরা পড়েছে। জানা গেছে পাপ্পু নামে ওই দুধ বিক্রেতা প্রতিদিনই গোমতীনগর থানা এলাকায় লাভ শুক্লা নামে একজনের বাড়িতে দুধ দিতেন। একদিন বাড়ির বাইরে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে গিয়ে বাড়ির মালিক দেখেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে দুধের পাত্রে থুতু দিচ্ছে ওই দুধ বিক্রেতা পাপ্পু। এরপর ওই দুধ বাড়িতে দিল সে। বিষয়টি দেখতে পেয়ে রীতিমতো অবাক হয়ে যান গৃহকর্তা লাভ শুক্লা। তিনি ওই দুধ শিবের পুজোতেও ব্যবহার করতেন বলে দাবি করেন। গোমতীনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযুক্ত দুধ বিক্রেতার বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইন আরোপের দাবি করেছেন। পরে ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে দুধ বিক্রেতা পাপ্পুর আসল নাম মোহাম্মদ শরীফ। বাড়ির কর্তা লাভ শুক্লা, যিনি অভিযোগকারী, তিনি কি বলছেন শোনাবো তার বক্তব্য। और हिंदू महासभा से भी जुड़े हैं। रोजाना की बात है, क्योंकि घर पे सीसीटीवी लगा है। मैं आज सीसीटीवी चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि दूध वाला जो है दूध में कुछ फूक रहा है पड़ के। तो मुझे संदेह हुआ, क्योंकि मैं इसको पप्पू नाम से जानता था, तो मुझे लगा यादव जी होंगे। और 2-2.5 साल से दूध इनसे मैं ले रहा हूँ। जब 2 बार फूकने के बाद इसने थूका है लिटरली उसमें डब्बा मुँह में लगा करके, तब मैं नीचे भागा कि दूध के लिए मना कर दूँ। तब तक ये लेकिन जा चुका था। फिर मैंने तुरंत सबको सूचित किया और थाने आया हूँ। इस पे कार्रवाई की मांग करूंगा। आपके घर में कितने लोग रहते हैं और कब से इस तरीके से दूध ले रहे हैं? 10-12 लोगों का परिवार है, 4-5 बच्चे हैं हमारे यहाँ और जॉइंट फैमिली है हमारी। लमसम 2-2.5 साल से इनसे दूध ले रहा हूँ मैं, लमसम 3 लीटर के आसपास। तो क्या ये इससे पहले कभी नहीं पता लगा आपको कि ये नहीं, कभी गौर ही नहीं किया ना। जैसे क्या ना कि पप्पू नाम से हर कोई लेता था, तो हम भी पप्पू नाम ही जानते थे। आज जब इसने ये कृत्य किया है, जब हमने देखा तो हमने इसके बारे में पता किया है, तब मालूम चला कि ये मोहम्मद शरीफ है। मल्हौर निवासी हैं, मल्हौर के। इसके बाद क्या ये अभी तक आया सामने, कोई बातचीत हुई? नहीं, हमारी इनसे कोई बातचीत नहीं हुई। हम सीधे थाने पे आए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमने क्या चाहते हैं आप? उचित कार्रवाई हो। ये सब कार्य नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है, ठाकुर जी की पूजा होती है, उसी कच्चे दूध से हम ठाकुर जी को नहलाते हैं। पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया इस व्यक्ति ने हमारा। कभी कोई विवाद किसी तरीके का? इनसे कोई किसी प्रकार कोई विवाद नहीं हुआ। टाइमली ये दूध दिए, टाइमली मैंने इनको पेमेंट किया है, ऐसा कोई विवाद नहीं है। बस हमें दुख इस चीज का है कि इन्होंने थूका क्यों उसमें। अखिल भारत हिंदू महासभा এই বিষয়টি জানতে পেরেই তাদের কর্মীরা থানায় পৌঁছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাতে শুরু করে। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার জাতীয় মুখপাত্র শিষ্য চতুর্বেদী বলেন, থুতু জিহাদ সম্পূর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই ধরনের লোকেদের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইন আরোপ করা উচিত। তিনি বলেন, কানওয়ার যাত্রা চলছে, এই সময় শঙ্করজির পূজায় দুধ ব্যবহার করা হয়, তাই এটি একটি গুরুতর বিষয়। शीर्ष चतुर्वेदी তিনি কি বলেছেন শোনাবো। छोटे भाई ये लव शुक्ला जी हैं और इनके घर पे एक दूधिया आता था जो अपना नाम पप्पू बताता था। 2-2.5 साल 3 साल से इनका दूध दे रहा है वो, और मोहल्ले के कई घरों में दूध दे रहा है। आज क्या, क्योंकि कैमरा लगा है उसमें रिकॉर्डिंग ये चेक कर रहे थे, उसमें इनको देखने को मिला
कि वे व्यक्ति दूध को खोल करके उसमें कुछ पढ़ रहा था आयत वगैरह और उसमें थूक रहा था। तो ये पूरा मामला जब प्रकाश में आया तो इन लोग को बहुत सदमा पहुंचा पूरे परिवार को कि इनका थूका हुआ दूध हमारा पूरा परिवार पी रहा है। और आप सोचिए छोटे से बच्चे जिनके दांत नहीं होते, जो बुजुर्ग हैं उनके दांत नहीं होते, उनका तो ये पूरा पूरा आहार है ये दूध। और शिवलिंग पे हम लोग इसी कच्चे दूध को चढ़ाते हैं। तो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का ये जो षड्यंत्र इनके जैसे तमाम लोग कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ प्रार्थना पत्र देने आए हैं और यहाँ मांग करेंगे कि कम से कम इन पे रासुका लगाई जाए, क्योंकि पूरे मोहल्ले को के आहार को जो है दूषित कर रहे हैं और छोटे बच्चों को और बुजुर्गों सबको ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो रासुका के तहत इस पे कार्रवाई है और इसमें मोहर लगती है। कांवड़ यात्रा पे जो आदेश दिया आदरणीय योगी जी ने कि वो पहचान सामने रखें, बोर्ड लगाएं, जिसपे विपक्ष उंगली उठा रहा था, विरोध कर रहा था, आज मोहर लग गई, सबूत है, पहचान भी छुपाई गई और थूक जिहाद भी किया गया। ये मोहर लगती है। कौन व्यक्ति है जो अपनी पहचान छुपा रहा था और कब से दूध दे रहा था? ये नाम अपना पप्पू बताता था और मोहम्मद शरीफ, जो इसके जब इन्होंने जांच कराई तो पता चला मोहम्मद शरीफ है। तो यहाँ गोमती नगर थाने में हम लोग यहाँ आए हैं, अभी प्रार्थना पत्र देंगे और निश्चित तौर पर सरकार क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कम से कम ये उचित धाराओं के साथ इसमें रासुका लगे, क्योंकि पूरे मोहल्ले के आहार को, बुजुर्गों बच्चों के आहार को ये दूषित कर रहा है। और थूक जिहाद के आप भी आभारी है, तमाम टीवी चैनल पे ये चल रहा है, तो उसी तहत ये सामने आई घटना। পুরো বিষয়টি নিয়ে ডিসিপি পশ্চিম জোন শশাঙ্ক সিং বলেন, বিষয়টি নিয়ে গোমতীনগর থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। জানা গিয়েছে যে দুধওয়ালা দুধে থুতু দিয়েছেন এবং এর সিসিটিভি ফুটেজও পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি তদন্ত করছে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভিডিওটা আরও একবার আপনাদের দেখাই, দেখুন এটা কত বড় একটা ক্রাইম। আপনাদের মতামত জানান, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।